कि कुछ कुछ चीजें ये अपने हाथ में लास्ट तक तुरुप का पत्ता रखते हैं. If I don't give blood sample, the FSL would not come, nothing proven. Government will pay for her coming and going. Volvo बस में ट्रेवल करके आएंगी, उसके लिए सरकार पे करेगी. और आ गए हैं वकील, आ गए हैं, everybody is there. She'll say कि मेरी तबीयत खराब. There is the honorable court, in which there is the public prosecutor, there is DCW council, there is IU, there are other investigative agencies and Naib courts and everything. To support whom? The girl. The girl. What does the accused have? Nobody was his lawyer. His lawyer. Yeah. So these people have been enjoying this disparity for far too long. उसे लग रहा है कि वो फंस रही है. And she will start crying. And what can the court do? कि पानी पिलाइए, DCW काउंसिल का कंसोल कीजिए, अगली तारीख दीजिए. कहीं तिरशा राठौड़ है, कहीं नूनहार है, कहीं नूरी खान है, कहीं नूरी कौर है, कहीं पे कुछ है. एक कंप्लेन आई जी, हमने we sent the person behind bars, we investigated कि जी she has leveled these allegations, let the honorable court decide. This has become a routine practice, and this is the downfall. No matter how false the case is. No matter how false the case is, because the falsehood of the case is matter of investigation. This girl goes to the jail, meets the accused in jail, and demands money from there. How much? 20 lakh rupees she demanded. In cases when एक mindset है कि अगर वो कोई बात नहीं, हमारी नहीं बनी, हमारी नहीं चली, let's get separated or anything. But then the other thought comes in, मेरी नहीं बनी तो मैं इसको दुखी जरूर करूँगी. These are disgruntled females. हम बात करते हैं rights of victim under criminal justice system, and one part of that is compensation. Now, he is a victim. बहुत सारे judgments जो हम आज देख रहे हैं, उसमें dignity, that you were suffered this procedural impropriety, गलत allegation लगा, सब चीज़ों की बात हो रही है. But कहीं भी compensation आपको as a word या in truth letter और spirit कहीं नहीं मिलेगा. Hello and welcome to yet another episode of the Ekam Nyay Show. I hope you are learning a lot from the content that we bring to you. Our focus always is on everything that revolves around men's issues. पिछले काफ़ी सारे एपिसोड्स में हमने आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवाया है जो कि झूठे बलात्कार के शिकार रहे हैं और उनके साथ क्या हुआ. आज जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी, उन्होंने दिल्ली में हाल ही में एक शख्स को ना ही सिर्फ बाइज्जत बरी कराया एक झूठे बलात्कार के केस में, बल्कि जो महिला जिसने झूठा बलात्कार का केस किया था उसके ऊपर परजुरी की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हुई. हमने एक और एपिसोड शेयर किया था इसी तरह के केस का, और हमने बताया था कि उसमें जो जज थे जिन्होंने एक्चुअल जस्टिस किया उस केस में, वही जज इस केस में भी जज हैं. मैं बात कर रही हूँ जज अनुज अग्रवाल जी की. इनफैक्ट मैं हमारी पूरी कम्युनिटी जो कि फॉल्स एक्यूजेशंस के खिलाफ काम करती है, उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि वो जेंडर के बेसिस पे जस्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जस्टिस के बेसिस पे जेंडर कर रहे हैं. बहुत ज़रूरी है रेपिस्ट्स को पनिश करना, उनको हार्शेस्ट पनिशमेंट देना, लेकिन उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम उन महिलाओं को पनिश करें जो झूठे रेप केसेस फाइल करती हैं. आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं केस स्टेट वर्सेस संदीप, और इस केस में संदीप को बरी करते हुए अनुज अग्रवाल जज ने जो लास्ट में शब्द बोले, मैं वो एक बार शेयर करना चाहूँगी. Before parting, I may hasten to add that purpose of any criminal trial is not merely to adjudicate upon the issue of innocence or guilt of the accused. The courts are not merely coroners to attend legal or constitutional rights of the aggrieved only after they are dead. Instead, they act as healers to administer the panacea of justice to the wounds of aggrieved. The word aggrieved cannot be confined only to complainant. But there may be cases where even the accused becomes the real sufferer, standing before court with folded hands and beseeching justice for themselves. It takes one's lifetime to build a reputation, but only few lies to destroy the same. Therefore, in my view, an acquittal simpliciter cannot recompense the agony of accused who had to undergo
the trauma of trial for such heinous offenses based on a false story of sexual assault. Since it is clear from record that prosecutrix made false statements before this court, let a complaint under 379 Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita for offense of perjury is punishable under section 229/231 BNS, corresponding to section 193/195 of IPC, be sent against her to the court of learned chief judicial magistrate by the helmet of this court. आज जो मेरे साथ हैं वो इस केस के मैं कहूँगी कानून के सामने सूत्रधार हैं. इन्होंने संदीप को डिफेंड किया कोर्ट में और आज हम इनसे जानेंगे कि ये केस क्या था. थैंक यू सो मच नितेश हम लोग को ज्वाइन करने के लिए. दैट इज एडवोकेट नितेश. नितेश थोड़ा सा हमारे को अपने बारे में बताइए, कब प्रैक्टिस, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या फोकस है? So thank you so much for having me. So I am in the profession for last 8 years. I basically specialize in criminal law. I have a specialization as well as masters in criminal and security laws. And more or less, it has now become that with the influx of lot of rape cases and false rape cases, I have kind of become a rape expert these days. So I'm getting false rape cases expert. Okay. So this is the short and crisp version of this thing. Okay, great. संदीप के केस की कहाँ से शुरुआत हुई थी नितेश, मुझे बताइए, और वो आपके पास कैसे आए, उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया और क्या हिस्ट्री थी इस केस की? Sandeep ka case is one of those cases before Corona which we had seen, wherein the first wave of use of social media to actually engulf gullible people we saw Facebook का use करके, Instagram का use करके, Reddit जैसी apps तक का use करके, and now we are seeing a changing trend जहाँ पे जीवन साथी और other matrimonial websites का use हो रहा है. तो संदीप का केस was a classic Facebook case जहाँ पे एक आईडी से एक इंसान को मैसेज गया हाय, उन्होंने रिप्लाई किया एज एनीबडी वुड डू हाय. ही रिस्पॉन्डेड, सामने से वो फेसबुक मैसेंजर पे कॉल आया, ही कुड नॉट पिक अप, उन्होंने वापसी कॉल किया तो दूसरी साइड से आया कि कॉल मी ऑन दिस नंबर. सो दिस हैपेंस ऑन 20th of November in 2019. The lady says I want to meet you, I'll come to meet you in Delhi and etc. और 2 दिन बाद 23 तारीख को she comes to Delhi. It just takes her 2 days from Jaipur to travel to Delhi. Now the lady whom he was talking was not just different in terms of the filters being used, but also the name was different. She was completely different in the way she had approached him versus now what was being he was seeing and what was being professed. तो संदीप ने एक बार भी इस बंदी से बात नहीं करी थी? फोन पे वैसे बात हुई थी कि मतलब दो दिन बात हुई. फिर उसके बाद उसने कहा मैं दिल्ली घूमना चाहती हूँ, वुड यू हेल्प मी, मैं कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ, क्या मैं आऊंगी तो यू आर इन दिल्ली, वुड यू हेल्प मी आउट और नॉट. तो द क्लासिक टेक्निक, ये हम दिस इज अ कांस्टेंट ट्रेंड. अगर मैं लॉयर हूँ तो मुझे लीगल हेल्प चाहिए, डॉक्टर हूँ तो आई एम हैविंग सम मेडिकल इमरजेंसी, टीचर हूँ तो मेरे को कैरियर गाइडेंस चाहिए, अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो मुझे फ्लैट चाहिए. So they know from your Facebook profile, from your Insta profile, or from the photographs or the events that you post कि आप किस ब्रांच ऑफ लाइफ में काम कर रहे हैं, तो वो उसी टाइप की प्रॉब्लम आपको बताएंगे. एंड देन दे से कि आई नीड योर हेल्प, एंड एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, द अदर पर्सन वुड बी लाइक ठीक है मैं हेल्प कर रहा हूँ, प्रोफेशनल हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, हेल्प करता है. देन शी कम्स एंड शी सेज कि अब तो लेट हो गया, लेट्स स्टे इन अ होटल. दे गो टू अ होटल एंड देन इन द मॉर्निंग शी सेज कि मेरे को यहाँ आज मन सा नहीं लग रहा है, मेरे को घर जाना है, मेरी मगध एक्सप्रेस की रेलवे की टिकट बुक कर दो. He being the guy being having all the chivalry, he goes, buys a ticket, gives it to her and says कि ये टिकट है. and she had her own ulterior designs. वो कहती है इस टिकट में मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, so मैं स्टेशन मास्टर से एक बार कंफर्म करके आते हैं. वो स्टेशन मास्टर के पास जाती है, 2 मिनट बाद अंदर से जीआरपीएफ के जवानों को लेके आते हैं, कहते हैं he is the person who committed rape. चलिए जी, ये होता है एक संडे के दिन. संडे को she goes to the police station and she makes the ruckus out of the police station. She says कि मेरा आज के आज अभी के अभी मेडिकल कराओ. Plus that is a normal procedure. You can generally what we see is कि 164 एक दिन 2 दिन बाद generally होता है. And at that point of time छुट्टी वाले दिन she says कि नहीं आज की आज मेरा 164 भी कराओ because I have to go back to Jaipur. And she is taken to the house of Arjinder Kaur ma'am in Rohini, the learned MM, और वहाँ पे उनके घर पे उसका 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है सेम डे. And police escorts her, leaves her at the bus stand because the judiciary, the system, the prosecution, everybody is thinking that she is traumatized. She needs to go back home. But they do not know this thing, na?
कि 2 दिन बाद उसे उसके संदीप के घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए हरियाणा जाना है, इसके लिए टाइम तो चाहिए, उसे घर जाके प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, दिस इज द ऑडेसिटी कि वो जाती है वापसी एंड देन शी knows the name of the village of the accused. She calls up the सरपंच of that village. She tells him कि आपके यहाँ से कोई लड़का अरेस्ट हो गया. She takes 1 complete day to make that call. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन गांव तक पहुंचेगी कि आपके यहाँ से कोई बच्चा इस टाइप से अरेस्ट हुआ है. Then parents will try to find some background. And when they found out कि अच्छा इस टाइप से कोई हुआ है and he has been implicated in a rape case, he has been arrested, then she contacts the सरपंच कि I can help him out. बट नेचुरली ये लास्ट कि आप कैसे हो, नहीं वो मत पूछिए, मैं सहायता कर सकते हो. बोला बताइए आप कैसे कर सकते. फोन पे नहीं बताऊंगी, मैं आके बताऊं. एंड शी गोज, बुक्स अ कैब, गोज टू द नेटिव प्लेस इन हरियाणा. और जिस कैब से गई वहां जाते हैं राजशाही ठाट कि मैं कैब से आई हूँ, सो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ. ऑन दैट प्रीटेक्स्ट शी सेज यू पे फॉर द कैब. वहीं से बिलिंग स्टार्ट हो गई. 1800 रुपए पहले कैब के दिलवाए. उसके बाद शी सेज कि लेट्स टॉक कि व्हाट आई कैन डू टू हेल्प यू, आई विल गिव अ एफिडेविट. एंड शी इज सिटिंग देयर. और उन सब लोगों को पता है कि यही लेडी है जिसने रेप केस फाइल किया है. मेरे तो ये कैमरा वाले जो बैठे हैं ना, इनके लिए तो मतलब ये लोग स्टोरी में स्टोरी सुने जा रहे हैं, इनके तो शौक के मतलब लेवल्स इंक्रीज होए जा रहे हैं. तो फिर सो शी गोज देयर. उसने उनके घर में जाकर, सरपंच है वहां पे, लड़के की मदर है, लड़के की सिस्टर है, 1-2 गांव के और लोग हैं. एंड शी गोज देयर एंड शी सिट्स. और वो बैठी ऐसे नहीं है, शी इज लाइक रूलिंग द प्लेस. वो आराम से पैर ऊपर करके कंबल डाल के वहां पे उनके घर में बैठी. एंड देयर आर वीडियोज ऑफ हर सेइंग मैं एफिडेविट दे दूंगी, मैं ये डॉक्यूमेंट दे दूंगी, मैं अपने वकील से बात कर लूंगी, आप अपने वकील से बात कर लो, एफिडेविट देते ही बेल हो जाएगी. And then they are saying, obviously any person who is coming to their house, और जब वो जानते हैं कि that person has implicated their son or their brother, they also know what dangerous kind of a woman she is. correct. Still, there is that ray of hope कि क्या पता हो ही जाए, क्या पता सद्बुद्धि लग गई हो. They can just beg or they can pay. Those people who cannot pay, they'll beg. But see, the shrewdness of that lady, and then she says कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कि अभी आप कोई निर्णय करो, आप अपने वकील से बात कर लो, मेरे लिए यू अरेंज अ होटल. मोथल में, स्काई होटल में उसके लिए कमरा बुक कराएगा. बोले कि मुझे छोड़ने चलिए. अब छोड़ने जाने के लिए सरपंच और मदर साथ में गए उसके. होटल में जाके शी चेक्स इन, शी गिव्स हर आईडी. हाँ, वहां फिर वो कहती है तुम्हारे पास कल तक का समय है, 7 लाख, and I'll give the affidavit. Now this is also very tricky. Why would she go to the house and then afterwards tell the money? जाके she wants to see ना कि कितना पैसा पे कर सकते हैं ये. Oh, that capacity to pay has to be analyzed. So she goes there and for us it might be कि यार 7 लाख में छूटा, but think about the person हाँ, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो गरीब लोग, कोरोना के एरा के दौरान की बातें हैं ये. And then she demands that 7 lakh rupees from those people. Next day they say कि जी हम तो नहीं कर सकते. तो वो वहाँ हंगामा खड़ा करती है in the hotel itself. Because she was in hangover ना, पूरी रात के आप बिल देखेंगे, there was liquor, there was non-veg, veg and every sort of cuisine was ordered. 5,000 का bill in a Murthal tier 2 city hotel. And then the local police is called. And what does the local police say? निपटा लीजिए ना, आपका बेटा तो पहले ही इम्प्लीकेट कर रखा है, क्या करोगे. देन द फैमिली अगेन बेग्स, सरपंच साहब कुछ कराओ. सरपंच साहब गोज एंड पे 6,000 फॉर दैट होटल एंड देन शी कम्स बैक. दिस वाज द स्टोरी इन रिगार्ड्स टू टिल द पॉइंट अरेस्ट एंड हर गोइंग टू द विलेज. अब उसके बाद मैं अपनी ऑडियंस को इस महिला के जो अब हमने कारनामे सुने हैं उसका जीता जागता उदाहरण दिखाती हूँ. उदाहरण नहीं, एक्चुअल लाइव फुटेज दिखाती हूँ, क्योंकि जब वो आई थी वहाँ पे तब ये अच्छी बात हुई कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई. उसको बिना पता नहीं, उसको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, उसे बिना पता चले, उसको बिना पता चले वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली. आप ये देखिए, इस महिला का नाम है त्रिशा राठौर.
और इसके बारे में हम और बात करेंगे, बट आप पहले वीडियोस देखिए। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस कर देती हूँ। जब लास्ट में मेरे को 3 महीने बाद बुलाया, 6 महीने बाद बुलाए, लेकिन वो है कि कल लेकर वो लॉयर बोल रहा है ना कि एफिडेविट लगेगा, वो लगेगा, उससे तो वो बाहर आ जाएगा, ये तो डेफिनेटली है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। कल के डेट में हो सकता है एक अपने को एफिडेविट पेश करने, एक वकालत में साइन हुआ, बस वो लगते ही लड़का बेल में बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 महीने बाद जब कोर्ट मेरे को बुलाएगी, पूछ रहे जी साइन कहाँ करोगे जी, आप ये पूछ रहे हो कागज तैयार तो करेगा ना, वो तो एफिडेविट तो कोर्ट में होगा ना, फिर तो फोन करके बात कर लेंगे ना। हाँ मान ले कल जो फोन रख देंगे, ठीक है, इनसे बात कर दीजिए, फोन नंबर है आपके पास। अगर वो कहे भाई लड़की को आना पड़ेगा तो आप आ सकते हो। मतलब मैं कल जयपुर जाके फिर वापिस आऊंगी 2 दिन बाद 3 दिन बाद, वो तो क्या पता कै दिन के बाद बताऊंगा। सर मेरा ऑफ नहीं मिलता, मेरी बात सुनिए, और मैं छुट्टी लूंगी भी नहीं। मैंने आज भी जैसे इमरजेंसी में जैसे मैंने मेडिकल लीव ले ली है, मेरी छुट्टी होती है सैटरडे संडे की। तो जैसा कि आपने इन वीडियोस में जो देखा और आपने दर्शकों को जो दिखाया, ये वहां आई, इसकी डिमांड तो मीट नहीं हुई। हाँ, तो ये क्या किया इसने? उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आज के टाइम पे लीगल सिस्टम ने एम्पावर करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया था, उसका मिसयूज कैसे हो रहा है उसका उदाहरण देता हूँ। इस नीडी को जैसे ही बेल एप्लीकेशन लगाएगा कि उसकी तरफ से कोई भी लॉयर, उसके ऊपर नोटिस इशू किया जाएगा कि व्हाट डू यू वांट टू से ऑन द बेल एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। हाँ, अब ये हो गया है ना, इट हैज बिकम अ मैंडेट नाउ इट हैज बिकम अ मैंडेट। पहले नहीं था ये, बट आई थिंक कोई तो एक जजमेंट थी जिसमें पता नहीं शायद सुप्रीम कोर्ट की थी या हाई कोर्ट की, जिसमें कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी शायद, कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का भी जो है वर्जन आप बेल के टाइप पे लीजिए। एंड इसके वर्जन के लिए नोटिस इशू हुआ, देयर इज द बेल एप्लीकेशन, उसके साथ में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी है, एंड द ऑनरेबल कोर्ट्स हैंड्स आर टाइड, क्योंकि उन्हें प्रोसिक्यूट्रिक्स को तो बुलाना है। सो 3 times द नोटिस आर इशूड। नाउ शी इज अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, यहाँ से नोटिस इशू होगा, कम से कम 15-20 दिन की डेट लगी। सो ईच एंड एवरी डे ऑफ कस्टडी, दो द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वुड से, is itself such a detrimental to mental health of the accused, is suffering, they are falsely implicated। 15-15 दिन की डेट लगेंगी, क्योंकि ऐसी मोहतरमा को आमंत्रित करना है और वो नहीं आती है। देन उसके बेलेबल वारंट इशू होते हैं, वो नहीं आती है। नॉन बेलेबल वारंट इशू होते हैं, नहीं आती है। देन थ्रू डीसीपी आईओ इज गिवन अ डायरेक्शन, यू गो एंड फाइंड आउट कि ये मुकदमा दर्ज करा के चली गई है, वो महिला है कहाँ। एंड देन द आईओ goes in Rajasthan and finds out she is lodged in jail in Rajasthan। यहाँ वो जिसको बंद करा के गई, see the circle of life, she is lodged in custody there in some offense। The reports come, he is bailed out after 3.5 months, and then the matter goes to the trial। अब charge sheet आई, this is an incidence of 2019-20, and then the trial starts, and finally in 2022-23 there cropped up a issue। The issue was कि क्योंकि ये कभी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ही नहीं किया, तो जो भी डीएनए, जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए एफएसएल जो भेजे गए थे, बेड शीट्स हैं और जो हैं गारमेंट्स हैं जो रूटीन प्रोसीजर में भेजे जाते हैं, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। एंड द कोर्ट्स एंड वी वर ऑल एट अबिस कि ये रिपोर्ट्स कैसे नहीं है, एफएसएल की कैसे सील्स नहीं है इसमें। एंड देन व्हेन एवरीथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स वर सीन, इट वाज फाउंड कि उसने ब्लड सैंपल ही नहीं दिया कभी, डिस्पाइट न्यूमरस नोटिसेस, उसने अपना ब्लड सैंपल नहीं दिया, तो इसलिए एफएसएल का कोई रिजल्ट नहीं आया। नाउ यू वुड से कि एक कोई कह सकता है कि दिस इज अ इन्वेस्टिगेटिव लेकुना। नो, इट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेटिव लेकुना। दीज आर क्लासिकल ट्रिक्स दैट दीज वुमेन एम्प्लॉय, कि कुछ कुछ चीजें ये अपने हाथ में लास्ट तक तुरुप का पत्ता रखते हैं। इफ आई डोंट गिव ब्लड सैंपल द एफएसएल वुड नॉट कम, नथिंग प्रूवन। उसकी एक स्टेटमेंट में चीफ में शी कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके संबंध बना लिया। While in the original allegation it was he forced me and made sexual relationship। बाद में कहती है मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके बना ली कि कम से कम मैं वो खींचने की, तार खींचने की कि हाँ यार, I am incorporate if you pay up more। So I have kept these avenues open, and this does not come without good legal advice। So the accused rarely get good lawyers, but these people have good advocates on their payrolls।
and they are themselves so trained. Yeah. And during the trial, we had to, make n number of efforts. The prosecution had to make n number of efforts to bring her to the court. और वो राजस्थान से आएंगी, गवर्नमेंट विल पे फॉर हर कमिंग एंड गोइंग, वोल्वो बस में ट्रेवल करके आएंगी, उसके लिए सरकार पे करेगी, और वो आके कहेंगी, कोई भी जैसे वो देखेंगी दैट द अदर पार्टी इज रेडी टू क्रॉस, और आ गए हैं, वकील आ गए हैं, एवरीबडी इज देयर, शी विल से कि मेरी तबीयत खराब, अगली तारीख मेरी माताजी एक्सपायर हो गए, अगली तारीख मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, अगली तारीख. And finally, as it would happen, this matter got shifted to the fast track court, and she came for the evidence. Her evidence, I crossed her for 3 dates. On the first date, because when you are seeing her coming there, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें आती हैं, and as lawyers, you have to be observant. अब when I was seeing her, she had like यहाँ पे lot of marks, और वो blade injuries के थे. And we have seen this trend कि जो the size that was like कि this is a proper incision and she would require medical assistance for this. और अगर इतना किया है तो attempt to suicide का केस भी दर्ज हुआ होगा. तो as victim तो नाम छुपा हुआ होगा, पर as accused तो कहीं ना कहीं नाम होगा, क्योंकि attempt to suicide का केस किया. And she is from Jaipur. So we started filing RTIs in Jaipur. अच्छा. वहां से जो फर्स्ट RTI जो निकली, उसमें ये मिला कि जो इसने फेसबुक पे नाम यूज करा था त्रिशा राठौड़, पर मुकदमा तो नूनहार ने दे रखा था. हाउ डू वी कनेक्ट दैट? उस संदीप के केस में इसका नाम इसने नूनहार बताया है. इसने नूनहार बताया है. फेसबुक आईडी इसने जो यूज करी है त्रिशा राठौड़ की यूज करी. एंड आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. व्हेन आई कन्फ्रंटेड हर कि आपने ये त्रिशा राठौड़ क्यों यूज किया है यहाँ पे, तो ये तो मेरी दोस्त की फेसबुक आईडी थी, मैंने सोचा कुछ दिन चला लो. तो कोर्ट का क्वेश्चन था, फिर ये डिस्प्ले पिक्चर क्यों बदली? दिस वाज अ कोर्ट्स क्वेश्चन. बोल क्योंकि मैंने बात करनी थी तो डिस्प्ले पिक्चर बदली. राइट, द ऑनरेबल कोर्ट आस्क्ड, फिर नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि मेरे को दोस्त के नंबर से बात करनी थी. एंड बेस्ट ऑफ द थिंग्स, देन शी सेज, मैंने पूछा आपकी वो दोस्त कहाँ है? वो तो मर गई. उसके बाद आपने उसके कितने दिन तक यूज करी? उसकी डेथ के बाद 2-3 साल तक यूज करी. मैंने इससे पूछा आप कितना पढ़े हो? वो कहती है कि मैं 6th क्लास तक कन्या विद्यालय में पढ़ी हूँ. आपकी दोस्त का कितने पढ़ी थी? 10वीं क्लास तक, वो DPS में पढ़ी थी नागौर में. उस फेसबुक आईडी पे लिखा हुआ है सेंट एडमंड स्कूल जयपुर. ये स्कूल किसका है? अगर इस फेसबुक आईडी को यू आर सेइंग कि दिस इज योर आईडी, दिस वाज योर फ्रेंड्स आईडी, दिस स्कूल बिलोंग्स टू सम अदर पर्सन. सो देयर एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन फॉल्सहुड. इज जस्ट रिक्वायर्ड द राइट प्लेस टू क्रैक इट एंड हिट इट. एंड द राइट प्लेस इन दिस केस वाज हर स्लैश्ड रिस्ट्स. वहां से जो खुलना चालू, क्योंकि उस FIR में ये चीज थी कि शी ऑपरेट्स विद डिफरेंट नेम्स, और ये आदतन उस एरिया में कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर झगड़ा, लूटपाट और इस तरीके की झूठे केस दर्ज करने की धमकियां देती रहती है. एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड परस्यूइंग द जयपुर एंगल. देन वी केम टू नो अबाउट हर अरेस्ट इन पंजाब. देन वी केम टू नो अबाउट कि एक यहीं पे दिल्ली में शी हैड एक्चुअली implicated a waiter in a hotel. In a rape case? In a rape case. And the complaint said that I am from Saudi. I came from Saudi. I traveled by air. I wanted to stay. So I went to the hotel. अगले दिन मुझे मेरे उनके मौसा के या किसी के पास जाना था. And the waiter committed rape upon me. And this is all falsehood. She does not even have a passport. पर see the structure in which these stories are built. पर इसका एक फायदा, जो इसने दिल्ली में वेटर के ऊपर डाला था, ये ललित होटल का था क्या? नहीं, ललित नहीं है, होटल कोई और है. I'll get you the details of that hotel. और पंजाब में ये किस लिए जेल में थी? पंजाब में they try to extort somebody. ये रेप के केस में see how the court is set up. So there is accused, and as you had just read out that the accused with folding hands is beseeching justice, and there is his counsel. See the other side, there is the honorable court, in which there is the public prosecutor, there is DCW counsel, there is IU, there are other investigative agencies and Naib courts and everything. To support whom? The girl. The girl. What does the accused have? Nobody was his lawyer. His lawyer. Yeah. So these people have been enjoying this disparity for far too long. Plus, the cycle of her crimes did not start from this कि यहीं तक.
When we were able to uncover each and everything, there are 15 cases that she has registered against people. नहीं तो वो तो अब मैं समझ में आ रही हूँ. तो just for the knowledge of our audience, Trisha Rathore has been called Luteri Bibi, and what you see on the screen right now is a press release released by the Jaipur police, and she has lodged more than 15 cases. तो जयपुर में ही है. जयपुर के. This does not even count the false rape case that she filed in Delhi. The two in Delhi. One in Buradi, there is a complaint. Then the Punjab ones. Then there is in Punjab. So in toto, pan India Trisha Rathore ये कितने लोगों के साथ कर चुकी है? This would probably right now still be a mystery. It will be a mystery, and the best part about it is that we know about 15 cases which have been lodged against her, which are of extortion and theft and robbery. Now think about this thing on this scale. There would be people who just agreed and cuffed up money to her demands. Plus वो जैन में रही है. अभी हमें एमपी का रिकॉर्ड तो पता ही नहीं है उसका. My God. And think there was a theory that the broken home syndrome. We see this as a classic example in this case. She is a divorcee. She has 2 children. Her mother also has a little distasteful past in terms of these things. She has also implicated few people in the past, and there are news and rumors in regards to that. And then she takes up that, continues the legacy. And to that extent, wherein she is first started off, because she was in Ujjain, she must have started off from there. Na? She was also lodged as a minor in PISA Act. She has been involved in these activities for so long that her story gets jumbled up. I'll give you an example how. Now, as you pointed out, 15 cases, we know she had given evidence in. There are 2-3 cases in Delhi. So, not every time she can remember each and every fact. So, अब वो कह रही है, when she lodged the complaint, कि मैं ट्रेन से आई थी. कोर्ट में आके कहा मैं बस से आई थी. मैंने पूछा किससे आए थे? नहीं, आई तो मैं बस से थी, फिर रेलवे स्टेशन तक गए थे. क्यों गए थे फिर रेलवे स्टेशन तक? फिर उसके बाद कहा नहीं, फिर उसके बाद ना he forced me and we went on the ring road and everyone I was shouting and this because she had to earn sympathy because she was getting angered in the questions and she was getting and the honorable courts more there. Then she says कि वो मेरे को ले गए और वहाँ पे करनाल border लिखा हुआ था. No, Karnal border I have not seen. I am from Haryana. I have traveled Chandigarh n number of times. You would have Karnal border तो कहीं नहीं लिखा है. करनाल bypass border नहीं लिखा. border लिखा होता है, bypass होता है. हाँ, बट वहाँ पे भी लिखा नहीं है. हमें पता है bypass है. हाँ, क्योंकि इसने अलग अलग केसेस में इतनी अलग अलग चीजें बताई हैं, तो हर बार because if it is truth, if you have suffered it, if you have seen it, God forbid somebody faces that, you would remember each and every detail like a nightmare. of course. But if you are cooking up on the go, so obviously, and if you are cooking up multiple dishes, so it is likely that some ingredients and some details will get mixed, and that is precisely what happened with her. And that is precisely what we are seeing as a constant trend. Yes, absolutely. जब ये इतना कुकअप करती है, मतलब ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल स्टोरी है कि मैं अपनी फ्रेंड का फेसबुक आईडी यूज कर रही हूँ. अब फ्रेंड कहाँ है? फ्रेंड मर गई है. नाम मतलब जजेस को एविडेंटली नहीं पता चल जाता कि, या मैं तो ये सोच रही हूँ कि ट्रायल में जब क्रॉस का तो स्टेज बहुत बाद में आता है रितेश, तो मतलब स्टार्टिंग में जब ये पुलिस को ये सब बता रही होगी एंड दे वुड हैव आस्क्ड हर कि आप ये एविडेंस दे दो या एटलीस्ट मेडिकल करा लो, फोरेंसिक, इससे कुछ भी नहीं किया, तो पुलिस को क्या मतलब वो जेरो दिमाग लगाते हैं क्या? मतलब नहीं, दिस वुड बी अनफेयर स्टेटमेंट. रीजन भी कि देयर आर ऑलवेज 3 वर्जन्स ऑफ एनी स्टोरी. योर वर्जन, माय वर्जन एंड द एक्चुअल ट्रुथ. यस. एंड दिस हैपेंस जैसे ही आते हैं इस टाइप की स्टोरी को देख के, इस टाइप की चीजों को देख के पुलिस को पता होता है. देयर आर सर्टेन पीपल, देयर आर सर्टेन एनजीओज आल्सो, सो कॉल्ड एनजीओज, दैट दे आर इन्वॉल्वड इन दिस होल रैकेट. पीछे भी कुछ एनजीओज दे वर नेम्ड एंड एवरीथिंग. पुलिस नोज, बट उसके हाथ बंधे हुए हैं. क्यों? क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स व्हिच said that if you have a case wherein there is allegations of rape, you have to register an FIR. If FIR is registered and if somebody is not arrested, until and unless there are cogent reasons, we are seeing in a few cases that is happening, specifically in matrimonial cases, because Supreme Court has said that in matrimonial cases it is routine that rape and other allegations will go.
So arrest is not being done. What about other cases? And nobody wants to be the Abhimanyu or, you know, the Karan in this scenario. Yeah. And the explanation, sub-inspector is investigating the matter. Explanation is called from DCP and everybody. Why didn't you arrest? And what was so important in this case? And because of this, when the case comes to before the Honorable Court cannot make up a mind at the very first instance. But once the prosecutors come, obviously they see the court. Why is the proceeding conducted in front of a judge? Why is it not like UK, wherein the lawyers will record the deposition and it is shown to the judge? Because in India, we believe that you might be lying, but your facial expression, your demeanors, your gestures, everything reflects a story. And when there is some tricky question or when there is some confrontation, then these people have devised a very new, good mechanism to counter that. Cross-examination. And how will they counter that? Tears. Yeah. They'll start sobbing. Yeah. कि अश्रुधारा बहने लग जाएगी and the court has to stop the proceedings. कि नहीं, let it come. There is an instance even in this case wherein the Honorable Courts record that she is crying and she is being consoled by the DCW counsel. Breaks the whole flow of the right of accused asking a question. अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक फ्लो है, अक्यूज की स्टोरी जो एक्चुअल स्टोरी है उसकी वर्जन से उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ और उसे लग रहा है कि वो फंस रही है. And she will start crying. And what can the court do? ही पानी पिलाइए, DCW काउंसिल का कंसोल कीजिए, अगली तारीख दीजिए. And these tricks have become a professional thing these days. जब आपको पहली बार पता चला नितेश कि ये एक सीरियल लिटिगेंट है, सीरियल रेप केस फाइलर है, आपने तो वो स्लैशेस को इन्वेस्टिगेट कराया था, बट जयपुर में आपको एग्जैक्टली कैसे समझ में आया कि इसने इतने सारे केसेस? अच्छा, उस एफआईआर में जो है, एफआईआर में इसके मल्टीपल, बट आपके मेरे ख्याल से जब तक हम लोगों ने बात की थी आपको पूरे एफआईआर के बारे में तो शायद नहीं पता था. तो इसने जितने केसेस करे हुए हैं उसके बारे में एग्जैक्टली आपको एफआईआर के बारे में पता चल गया था या आपको सिर्फ वो जो एफआईआर थी उसमें इसका कंडक्ट पता चला था? इसके 7-8 केसेस हम निकाल पाए थे. अच्छा. उसके बाद and thanks to you when we were talking and when this thing came out and when we connected, we are now able to figure out कि there are 15-16 cases that we know about. Yeah. And in total I would say कि इसको litigant नहीं कहना चाहिए, इसको blackmailer. She is not a habitual litigant, she is a blackmailer, extortionist. Yes. And we as a society, we as judiciary, we as lawyers and as a community have been very conscious in using these words. That, oh, she is a prosecutrix. Now, when it is proved, yeah, one should take a stand to call what it is. Yes, very true. Very true. In fact, we had difference of opinion with the other advocate I was shooting with, and she said कि मैम हालांकि हम लोगों ने केस जीत लिया है, it has been proven कि उसने झूठा रेप केस फाइल किया था, but I will still refrain from taking her name. And I told her कि there is no, तो मैंने तो नहीं लिया उस लड़की का नाम, मैंने तो ऐसी लड़कियों का नाम भी लिया है, फोटो भी लिया है, छापा भी है, because these are criminals, these are not victims, and they are using ये anonymity वाला जो clause है, ये इस anonymity वाले clause की वजह से ही repeatedly crimes करे जा रहे हैं. And unfortunately, in fact, I would want to state this very emphatically, Indian jurisprudence में किसी भी क्राइम में कोई अक्यूज्ड होता है तो उसका नाम रिकॉर्डेड होता है. मतलब अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है उसका नाम डेटाबेस में रिकॉर्डेड होगा. अगर यही इंसान दोबारा से कोई क्राइम करता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है कि इसने पहले भी एक क्राइम करा हुआ है, तो इस वाले क्राइम में अगर इसकी पनिशमेंट इसको मिल रही होगी तो सजा जज थोड़ा ज्यादा देगा क्योंकि वो पहले से क्राइम कर चुका है. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो झूठे बलात्कार करने वाली महिलाएं हैं, इनका ना ही कहीं रिकॉर्ड होता है, ना ही कहीं डेटाबेस होता है, ये अक्यूज्ड बनती ही नहीं है और इस वजह से ये बार बार बहुत सारे लोगों के ऊपर केस करती रहती है क्योंकि कहीं पे सिस्टम में इनका नाम रिकॉर्ड ही नहीं होता क्योंकि ये सो कॉल्ड रेप विक्टिम है. मैं ये नहीं बोल रही कि इस चीज को नहीं होना चाहिए, बट जहां पे प्रूव हो जाता है किसी महिला ने झूठा रेप केस किया है, मुझे लगता है बहुत जरूरी है अब हमारे सिस्टम में उनका कहीं ना कहीं नाम जो है दर्ज हो जाना. तो जब फाइनली जजमेंट की बात आई नितेश, तो जज अग्रवाल साहब ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर जो
जजमेंट के टाइम पे, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के टाइम? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे भी और बाकी जजमेंट में भी, विच हैज बीन रिकॉर्डेड वेरी फेयरली, कि जो जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, विच इज व्हेन वी सी अ क्रिमिनल ट्रायल, उसमें यू हैव अ FIR, उसके बाद 164 के स्टेटमेंट्स हैं, चीफ है, क्रॉस है, और दिस इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, so there are number of contradictions, those have been recorded at length. Important thing is कि छोटी छोटी माइनर डिटेल्स तो ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं, बट मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस, मेजर जो गेम चेंजिंग जो चीजें हैं, उनको रिकॉर्ड किया गया, जैसे कि वो कैसे आई, कब आई, क्या पर्पस था, इमोशनल ब्लैकमेल गेट्स चेंज टू रेप, फोर्स्ड एंड एवरीथिंग। प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जैसे कि आप कह रहे थे कि नाम नहीं लिया जाता है, तो मेरे ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाम लेने की, क्योंकि वो 7-7, 8-8 नाम यूज कर रही है। कहीं त्रिशा राठौड़ है, कहीं नूनहार है, कहीं नूरी खान है, कहीं नूरी कौर है, कहीं पे कुछ है। सो जब तक आज आपके माध्यम से अगर लोगों को पता चलेगा कि त्रिशा राठौड़, त्रिशा खान, त्रिशा नूनहार और इन नामों को लेकर उनके पास कोई मैसेज आ रहे, एटलीस्ट दे वुड बी मोर कॉन्शियस। यस, क्यों ना नाम लिया जाए? जब इन मल्टीपल फेक एलियासेस को यूज करके lot of people have been put behind bars under false cases, so they should be named. And this was precisely the court's observation that एक Facebook पे अलग नाम है, इनका रिकॉर्ड में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग है, अलग अलग FIR जो कि उसने खुद एडमिट करी है उसमें अलग अलग नामों से इसने FIR करा रखी है, और प्रीवियस जजमेंट ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ द सेम कोर्ट इन द वेटर केस दैट आई वाज टेलिंग यू, उसमें लिखा है दैट शी इज अ प्रोफेशनल, द वर्ड यूज्ड इज प्रोफेशनल। Oh. And then the judgment attained finality never challenged. And because this time, and this is, I have been told, I am still to see the papers, that in this judgment she wants to go to the Honorable High Court. Very nice. She must go to the High Court. I really want Delhi High Court to, I hope they take her case very, very strongly. Strongly, Not in our favor, but against her. But I doubt if Delhi High Court will do that. No, I would want that, let this case be analyzed for what it is. It is, yes. There is a word called Nazir. तो क्या पता ये केस वो नजीर बने, wherein this becomes a facet that to identify these kind of people, maybe some guidelines. I recommend that certain guidelines like कि आप accused का criminal history निकालते हैं NCRB डाटा से, आप complainant का क्यों नहीं निकालते? यहाँ पे यही जब आप कह रहे थे तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न कौन था कि at the time of registration of the FIR, अब इस महिला ने इतने सारे केसेस करे हुए हैं, जो हम लोग पहले वाला केस डिस्कस कर रहे थे, आधार भी ये महिलाएं फॉर्ज कर लेती हैं, तो जब आधार भी फॉर्ज हो गया तो क्या एक पुलिस इतना भी नहीं देखती है कि हम आधार मैच कर ले? मतलब ये 10 नाम यूज कर रही है और ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं उन नामों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका रियल नेम तो कुछ और ही है ना, तो क्या उतनी भी बिल्कुल वो नहीं एनालिसिस होती नितेश? मैम, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR आपको कंप्लेन मिली, एक कंप्लेन है कि एक रेप कमिट हुआ, आई एम सो एंड सो एंड रेप वाज कमिटेड अपॉन मी, मे बी मेरा बैग नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं है, बट FIR दर्ज होते ही द पर्सन इज बिहाइंड कस्टडी, ही इज बिहाइंड बार्स, 3 महीने 4 महीने लगेंगे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने में। दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेदर एंड मोस्टली इन केसेस नॉट डन प्रॉपरली, बट दिस इज पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन कि आप ढूंढिए कि वो कौन है, क्या है, उसका नहीं है, पास्ट है, बट केस प्रेशर, वर्कलोड, एंड वी हैव टू बी फेयर टू द पुलिस। दे से वन थिंग, एक कंप्लेन आई जी, हमने वी सेंड द पर्सन बिहाइंड बार्स, वी इन्वेस्टिगेटेड कि जी शी हैज लेवल्ड दीज एलिगेशन, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। दिस हैज बिकम अ रूटीन प्रैक्टिस, and this is the downfall. No matter how false the cases. No matter how false the case is, because that falsehood of the case is matter of investigation, but registration is the mandate. Yeah. मतलब पुलिस एनी विच वेज उसमें तो मुझे तो कोई कोताही नहीं है बोलने में कि लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हालांकि बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लोगों को कुछ न्याय भी दिलवाया है, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल होती हैं, बहुत सारे सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर स्टैंड लिया हुआ है, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिन्होंने अपने पूरे स्टाफ को नॉट स्टाफ बट अपने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया हुआ है कि अगर झूठा केस है खात्मा रिपोर्ट फाइल करो और कोर्ट में भेजो। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन बहुत कम है, बट बहुत सारे ये जो इस तरह उम्दा पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि दीपिका जी हमारी मजबूरी ये है कि
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम That is sufficient in itself. This सफिशिएंट इन इटसेल्फ। तो हम जब फाइनल रिपोर्ट फाइल करते हैं तो हमारे को 50 जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन जब हम चार्जशीट फाइल कर देते हैं, वो चाहे सिर्फ इसकी स्टेटमेंट और 161 के और 164 के बेसिस पे हो, हम चार्जशीट फाइल कर देते हैं, हम ठीक है, तब उसके बाद उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इट्स बिकम वेरी वेरी ट्रिकी। That's the paradox of things. When you say a catch-22 situation, this is a classic catch-22 situation. करेक्ट। आपके पास क्या नितेश और भी इस तरह के आपने केसेस देखे हैं जहाँ पे एक ही महिला मल्टीपल लोगों को फंसा रही है, रेप केस फाइल करे? किस तरह के केसेस आजकल, जब आपने कहा कि आप फॉल्स रेप केस एक्सपर्ट हो गए हैं, तो जरा और बताइए कुछ शॉकिंग फॉल्स रेप केसेस। Okay, so one of the best in the recent that I was dealing with, this pertains to Gautam Budh Nagar. Jeevansathi.com. दे सेम मोडस ऑपरेंडी की बातचीत किया और क्या, उसके बाद 2-3 महीने मिले एंड देन शी सेड कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नो, शी पार्ट्स वेज। वो बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। 3-4 महीने बाद एक कंप्लेंट दी जाती है दैट ऑन डेटेड सो एंड सो 3-4 महीने बैक, बिकॉज द रिकॉर्डिंग्स ट्रेडिशनली स्टे इन द गवर्नमेंट CCTV कैमराज फॉर 3 months, इन जनरल आर DVRs एंड एवरीथिंग फॉर 1 month। तो वो टाइम पीरियड निकाल के कि कोई CCTV ना देख ले और कोई एविडेंस ना आ जाए कि वो कंप्लेंट दी जाती है कि सो एंड सो डेट रेप वाज कमिटेड अपॉन मी। नाउ देयर वाज अ गुड पुलिसमैन इन दैट केस, उसने शुरुआत में अरेस्ट नहीं डाली। सो शी मैनिपुलेट्स सर्टेन false Snapchats photographs of private parts and alleges साहब ये मुझे वो भेज रहा है स्नैपचैट पर, नो नेम नथिंग, साहब मुझे ये वो स्नैपचैट पर भेज रहा है। गिव्स टू द पुलिस, पुलिस अरेस्ट दिस पर्सन, closed into custody. Now the district court in UP, they traditionally do not give bail in rape cases. We approached the Honorable High Court of Allahabad. We find a case wherein she has done the same ditto allegation, same gap of 3 months and everything. The best argument of the lawyer who was representing her was, and quote unquote I am quoting, कि जनाब कानून की किस किताब में लिखा है कि जिसका एक बार रेप हो गया उसका दोबारा नहीं हो सकता। This is their defense. But as heavens would have it, we found a third case. वहाँ जनाब, this shows the conduct. कानून की तो किसी किताब में नहीं लिखा है, पर कंडक्ट तो देखे, किसी किताब में लिखी है इस बारे में भी कि जो ये कंडक्ट चल रहा है, either through a judgment or either through some kind of legislative intent that to be shown by the legislature, something has to be done. And this lady, the ground of bail, most interesting, and now we have gone for discharge to the Allahabad High Court. We have moved there on the ground that when her bail, when the guy's bail application was filed, this girl goes to the jail, meets the accused in jail, and demands money from there. How much? 20 lakh rupees she demanded. आप कहते हैं हिम्मत, बाहर फैमिली, एक केस जिसमें यहाँ फैमिली को अप्रोच किया गया, बिकॉज वो जो उस केस में जो इम्प्लीकेटेड पर्सन है, ही इज फ्रॉम J&K, तो और फैमिली वाज नॉट रेडीली अवेलेबल, तो उसे लगा कि अब मैं किसे अप्रोच करूं, यहाँ तो ये गांव में जाके वो J&K नहीं जा सकती थी, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग जेल जाके एक्सटोर्ट करने की कोशिश कर। दिस इज द लेवल ऑफ थिंग दैट हैज ग्रोन। पीछे आपने इलाहाबाद में ही देखा होगा, एक CBI इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी, CBI इंक्वायरी ऑर्डर की है, 29 केसेस फाइल करे, 30 केसेस फाइल करे। फरीदाबाद में भी सेम कहानी हुई। एक जो इमेज है कि महिलाएं बहुत अनसेफ हैं और कहीं पे जाती हैं तो उनको बहुत मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अनसेफ इतना सोसाइटी है, लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं जो जेल में जाके खुलेआम एक्सटॉर्शन का। और उदाहरण दे देता हूँ, 2 भाई बहनों की मदर की डेथ के बाद दोनों के बीच में लड़ाई थी, 40 गज का घर है, टोटल वैल्यू ही 7 लाख के करीब होगी। उनके बीच में लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे या गाइडेंस में आकर अपने भाई के ऊपर ही रेप केस लगा दिया। And now the brother is in jail, she is the prosecutrix and the father has to see both. घर पे बेटी को भी देखना है, बेटे से भी जेल में मिलने जाना है at the age of 75 years. And think about this thing, I am the counsel for the accused, that is the brother. But
व्हेन द ब्रदर सेज कि मेरे फादर को ये कह दीजिएगा कि ये चीजें मेरे को जेल में भिजवा दे, द फादर इज ऑल्सो विटनेस इन द प्रोसिक्यूशन लिस्ट, क्योंकि घर की बात है, तो अगर बेटी ने एलिगेशन लगाया, फादर उसमें विटनेस है, तो मैं अगर जाऊं, थिंक हाउ थिन द लाइन इज, कि अगर मैं जाऊं उसके फादर को ये कहने कि आप बेटे हुए हैं, एलिगेशन वुड कम, आई एम ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस. What do you do in these situations? This is whole jumbled up, and I'll tell you the future of this thing. जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में इतना मिसयूज हुआ, the empowering provisions which was supposed to be a shield, they were used as a sword. तो आज उसमें प्रोटेक्शन कहाँ है फीमेल्स के पास? इवन जेन्युइन केसेस में भी नहीं रहे. इस प्रोविजंस का, इन रेप केसेस का जो एंड ऑफ डे जो होगा, वो जेन्युइन फीमेल सफर करेंगी बिकॉज ऑफ द मैनी, बिकॉज ऑफ नॉट द फ्यू, बिकॉज ऑफ द मैनी wrong cases that are being filed, many false cases that are being filed, and because of the few who have become professional in doing this. It's become a business. It's become a business and It will be very imperative. Very lucrative business. मेरे से आपसे जैसे मैं बात कर रही थी, एक और हम फॉल्स रेप केस के ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो 50-50 लाख 70-70 लाख रुपए तो पुलिस स्टेशन में बैठ के मांगे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक पूरा इतना वेल ऑयल्ड मशीनरी बनता जा रहा है. हमने तो गुड़गांव में एक पुलिस एसआई को, लेडी को अरेस्ट भी करवाया था 2 साल पहले. वो ऐसी एक गैंग के साथ जो है मिलके डराती थी जी, झूठे रेप केस फंसाने के लिए. ये देखेंगे जो पूरा जो ये नेक्सस है, उसमें हमारे पास जो केसेस है, these are cases of false identification. When I say false identification, कैसे कि ये ठीक मुर्गा या शिकार पहचान नहीं पाए. जो ठीक मुर्गा फंस गया, जो करोड़ों की सो कॉल्ड आसामी है, वो तो 50-60 लाख दे ही देगा मैम. जो ठीक नहीं आइडेंटिफाई हुआ, जो पे अप नहीं कर पाए, उन्हीं के तो केसेस पहुंचे, वरना तो बाकी तो पहले ही सेटल हो जाएंगे, थाने में सेटल हो जाएंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाएंगे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. नितेश, साइकोलॉजी क्या है? मतलब अगर मैं त्रिशा राठौर की तो देखूं, तो त्रिशा तो चलो एक प्रोफेशनली क्रिमिनल होगी. आपने ये भी बताया कि वो एक ब्रोकन होम से भी आती है, तो हालांकि दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट देन शी हैज ग्रोन अप सीइंग दैट एंड शी इज डूइंग दैट. बट जो दूसरा आपने केस बताया जिसमें आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं, जो जीवन साथी से ये पूरा ट्रैप कर रही है, उस महिला की क्या साइकोलॉजी है, या यूजुअली इन महिलाओं की क्या साइकोलॉजी रहती है? खासकर लेट मी डिफरेंशिएट, एक्सटॉर्शनिस्ट तो एक्सटॉर्शन में है, ठीक है, बट मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे महिला का शायद एक्सटॉर्शन का कोई वो नहीं था एक्सप्लिसिट, बट ये जो मल्टीपल शादी के झांसे वाले हैं, उसमें साइकोलॉजी आपने किस तरह की देखी है? तो डिवाइड इट इनटू लाइक आउटराइट एक्सटॉर्शन एंड ये जो मल्टीपल शादी के झांसे वाले हैं. See, outright extortion is not something new. ये पहले भी होता था, but अब it has become syndicated. हाँ. Now there are players involved, सबका कट फिक्स है, whether it is the police, whether it is कि उनके legal cost कितने लगेंगे, whether it is कि हाँ उनके technical उसके लिए और वो. And I know people who even do not engage police personnel, वो करने के लिए, extortion करने के लिए खुद ही पुलिस की वर्दियां पहन के चले जाते हैं उन्हीं के गैंग के. And there are cases they have been arrested and they are facing prosecution these days. When we see the other side, उसमें दो, when you were saying about कि ये कि शादी का झांसा देना और ये, these are disgruntled females. ये in cases when एक mindset है कि अगर वो कोई बात नहीं, हमारी नहीं बनी, हमारी नहीं चली, let's get separated or anything. But then the other thought comes in, मेरी नहीं बनी तो मैं इसको दुखी जरूर करूंगी. एंड देन देयर इज अ गुड फ्रेंड इन टर्म्स हु विल सजेस्ट कि यार तेरा इतना समय, तेरी इतनी एनर्जी है, तेरे को कर दिया, तो तू उसका कुछ ऐसा तो कर कि दैट ही रिमेंबर्स एंड सफर्स फॉर लाइफ. ये रिवेंज, एंड स्पेशली इन द मिलेनियम्स जनरेशन दैट वी आर सीइंग, यू नो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. इसका बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं मैं आपको. कहीं पढ़ा था कि हमारे टाइम पे शक्तिमान सीरियल आता था, एक वीक में एक एपिसोड आता था 1 घंटे का. वी यूज्ड टू वेट फॉर 1 वीक टू सी दैट 1 एपिसोड. आज क्रिमिनल जस्टिस का नया सीजन रिलीज हुआ है, बट एवरीबडी इज वेटिंग कि पूरा का पूरा आ जाए तो वी विल बिंज इट. दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि मुझे आज किसी का साथ चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए,
उससे बदला लेना है तो इंस्टेंट लेना है, नहीं बनी तो it has to win. That instant thing, instant anger, instant rage, that has become the ground of this whole thing. And this psychology is not something that is a rocket science. It's simple as that कि मेरे को अगर I feel empowered कि as a provision of law I can make somebody beg in front of me, मैं ना गड़गड़वा सकते हैं तो क्यों ना करो. That is in this शादी का झांसा. Everybody knows कितने शादी के झांसे होते. There are n number of consideration. Two people do not get married just thinking कि हाँ ठीक है तुम अच्छे लग रहे. Lot of things. There are understandings, there are emotional, psychological, other support systems. But वो नहीं, instant. That is the whole issue. जैसे आपके केस में, संदीप वाले केस में तो अनुज अग्रवाल साहब ने उसके ऊपर परजुरी इनिशिएट कर ही दी है. आई रियली होप कि जितने भी ये जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं जिसमें अग्रवाल साहब ने परजुरी इनिशिएट किए, इन केसेस का एक फटाफट ट्रायल हो. ये नहीं है कि ये चले जा रहे हैं 8-10 साल में, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, और ये महिलाएं कन्विक्ट हो. बट कोई भी ऐसा केस नितेश, को जरूरी नहीं दिल्ली का ही हो, बट कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगा कि एक डेटरेंट किसी कोर्ट ने सेट किया जो कि एक एग्जाम्पल बना, जो कि अलग और जगह पे भी होना चाहिए, ऐसा कोई केस आपने देखा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट द बेस्ट एग्जांपल. जो पीछे की जितना समय लड़के ने एक झूठे केस में कस्टडी में काटा है उतनी सजा उस लड़के को मिली. दैट इज नॉट समथिंग न्यू. द प्रोविजन सेज, यस, द प्रोविजन सेज द सेम. बट व्हेन ऑनरेबल हाई कोर्ट सेज इट, लीगल लैंग्वेज की बजाय वो जनमानस की भाषा में समझाया जाए, लाइक यू आर टेलिंग द पब्लिक. वो कन्वे करता है मैसेज. वो कन्वे करता है मैसेज दो तरीके से. वो जो पोटेंशियल विक्टिम्स हैं उनको भी एम्पावर करता है कि कल को कोई उन्हें एक्सटोर्ट करने की कोशिश करे, दे कम फॉरवर्ड. एंड सेकेंडली, एज डेटरेंट, इट एक्ट्स अपॉन दीज फीमेल्स हु आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग. सो दैट इज वन ऑफ द केसेस. Secondly, in recent past, there was this series of things that was happening. That people in Spa, there was this case in Hoj Khas, wherein a lady from a foreign nationality, she comes, and you would have seen in spas there are blanks cut out on the top portion, so that if there is something or help and somebody shouts out or somebody could enter. She implicated the staff in some case and everything. So not only she was made to face the trial, for closure was filed, a report was filed, and the court took her to task. So this was one of the deterrent for those foreign nationals, that it's not that you will file a complaint and you will go back to your home country. We had seen this happening. There was this case of lady of Philippines. She filed a case, went back to Philippines. She is not coming. Ministry of External Affairs is writing. Everybody is writing, and the court has to wait. So if you a judge writes a letter to the Ministry of External Affairs, it takes 6 months that they'll pursue, send to Philippines and everything. Accused has to appear on each and every date. By the time he sends the 3 notices, which is mandatory, it's almost 2 years. It's almost 2 years, and the posting of the judge changes. A new judge would come, and he'll say, "Nahin, at least let me send once, let me try and pursue once, because it is the mandate of law." वो तो यहाँ पे एक झूठा केस डाल के चली गई. That accused is now married, has children, but in every 2 months he has to come to the court. But what would be the intent of a foreign national to file a false case? Matlab, what would be the motivation? The motivation being very simple: money. There is nothing more motivational to any person than money. But how will foreign national, ये foreign nationals पे fund करने लगे हैं क्या? नहीं, मैंने शादी के जहाँ से कि एक्चुअली 4-5 केसेस देख लिए जो फॉरेनर्स ने भी अब इंडिया में फाइल कर दिए हैं. तो हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि शादी का झांसा वर्ल्ड फेमस हो चुका है. वर्ल्ड फेमस तो लेकिन दिस इज फॉर माय ऑडियंस. आई एम नॉट ट्रिवियलाइजिंग रेप, एंड आई वांट टू से दिस कैटेगोरिकली. Women who suffer rape are go through immense trauma, but it is unfortunate that we have to laugh today about it, because these women have made rape a joke. It's not us who are trivializing the offense. It is the women who are filing these false cases that have trivialized the offense. So pardon me in case you feel wrong, but then we are laughing on false cases and not what crime of rape is.
सो मैंने भी देखा, इनफैक्ट 3-4 केसेस हम लोग देख चुके हैं जिसमें वो यहाँ पर आई, काफी दिन महीनों उनके साथ रही, होटल में रहे, फिर उसके बाद वो बोल रही है शादी You see that there would be a age difference. यस This this case, I remember this case. She's much older. And to the guy. to the guy 19, 20, 21 साल के बच्चे, 38, 39 साल, 40 साल की महिला, एंड उस महिला के साथ उसका खुद का जो बेटा आया हुआ है इंडिया में वो 15-16 साल का है. एंड शी सेज कि आई सेड नो. This is a real case. This is a real case, the Philippines woman that I was telling you. कि I said no, but इसने कहा कि देखो मैंने सिंदूर लगा दिया, इंडिया में सिंदूर तुम पढ़ के देख लो, सिंदूर लगा देते हैं, then we can have physical relation. ये तो मुझे बाद में पता चला कि this is this and this is not that. And this is a case registered in T. Sajari court, and still it is ongoing. So can't divulge those कि what will happen in the case. Of course, But of course. She, in the last 4.5 years, she has not come from Philippines. We do not have any mechanism. She is not accused. We do not have any And the mechanism. court cannot do anything. The court can write to the Ministry of External Affairs. They can write to the Ministry of External Affairs, but if she is a victim, supposedly a victim, and she is herself not turning up for justice, then there has to be some limit to the amount of chances that you will give her to come, no? Then- Otherwise, she will not come for 10 years, so this guy will be hanging. Now, I'll tell you the mockery of the system that happens in this kind of cases. There are cases wherein the victim turns hostile. We have seen. Yeah. कि उन्होंने एक I was dealing with one of such cases. PCR कॉल कर दी 164 में. She said कि because I was having menstrual cycle and this was one of the first occasions, so मैं डर गई और वो हुआ and I made a call. We went for question. Honorable High Court में the state says कि जनाब वो 164 में if she has changed her statement under some duress, influence या because she received money, वो अलग बात है. But we have the bloodied bed sheets, we have other DNA evidence, we will prove it. Now if the lady is not moving, the state is like कि why should I take one as a lost case? कोई अपने रिकॉर्ड में खाते में कोई नहीं लिखवाना चाहता ना, मैं भी नहीं लिखवाना चाहता. बाय गॉड्स ग्रेस अब तक नहीं है कि आई लॉस्ट अ केस. व्हाई वुड स्टेट वांट? नितेश, थोड़ा सा फॉर नॉलेज ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी इंसान को इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं कि मैं आपको केस में फंसा दूंगी, धमकी दे रही है कोई महिला, खासकर शादी के झांसे वाले केसेस में, तो व्हाट आर द few steps that can safeguard them from extreme consequences? उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज के टाइम पे इंटरेक्शन फेस टू फेस नहीं रहा है. आप में आपके इंटरेक्शन में कोई ना कोई डिजिटल मोड इन्वॉल्व होगा, वेदर इट इज फोन, वेदर इट इज फेसबुक, या वेदर इट इज मैसेंजर, और या वेदर एनीथिंग. अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, whether it is on any kind of platform, हमारी इंटेंशन होती है अरे डिलीट कर देते हैं. We have our conversations and then we delete it because those conversations might be unsavory for other people. I say because they might be unsavory and you are deleting them. That's your call. But उसका एक रिकॉर्ड अपने लिए एक सेफ्टी के लिए रख लीजिए. रीजन भी कि कल जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके पास कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी लॉज्ड इन कस्टडी. और वो सेलेक्टिव एविडेंस दिखाएगी कि जी देखिए इसने ये भेजा, मुझे ये भेजा. वो नहीं दिखाएगी कि मैंने क्या क्या भेजा. एक दूसरी बात, देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, ट्रस्ट बट वेरीफाई. इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयरइन इट सो हैपेंस कि आपके पास एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगा, you pick it up and somebody morphs the video and there are obscenity and everything involved. One thing you do is, as soon as such thing happens, any sort, whether minor or major or anything, you just call 1930. That is the number for National Cyber Crime Portal. You report it, okay? Then give you a link, you attach all the evidences, and as soon as this happens, because traditionally we see cyber crime relates to only the financial part, पर ये भी तो साइबर क्राइम है. Yeah. ये भी तो आईटी एक्ट कवर करता है. करेक्ट. क्यों नहीं हम एज अ कॉन्शियस सिटीजन इस चीज को भी एजुकेट करें लोगों को, और लोग इस चीज को एम्प्लॉय करें कि
any kind of thing that is being attempted to you, why do you wait that they file in a police station or what? You use that resource in your hand, 1930, you call it and you report it. As soon as you report it, there are high chances that it will get tracked and the people and the nexus behind it. Because most of the time when these things are happening, these are not the actual females, but the data centers, the bots, actual, the high-tech infrastructure that is doing this. That has to be curbed. Somehow or other, the government will have to also take action. And third, as a society, whether be side of the alleged accused, now set free, we have to start talking. आज भी it is a stigma. चाहे वो false case है, आज के केस में we were wanting that कि Sandeep comes and tells his side of the story. But there is a stigma attached to it. कि चलो झूठा ही था चाहे, पर लगा तो था ना कभी, अरे ये कस्टडी में रहा था. That long-term stigma. And this is a statement from a Senate hearing in USA, wherein they say that a lady had made this statement that I was robbed at gunpoint and then raped. But more hellish than that experience has been the experience of the judicial system. Think about those judicial system and that experience. Now think of it from the perspective of accused, who has now been set free, but he does not want to relive that trauma. And until and unless we as a society start giving them that boost through podcasts like these, through channels like these, we try to show them that we as a community, we as society, irrespective of gender, are standing with you because you are right. If it had been a female who would have been subjected to this and somebody is connected, would stand with that female too. And that female should come and also tell her story. And if somebody is set free, that person should come and tell his story. Until and unless we have lost this thing, we are making examples out of people who have, done a number of cases. But every single atrocity, whether committed or falsely accused, they have to be brought to the knowledge. Yeah. And as a society, we have to take this step. Sandeep, आपसे I'll come back to Sandeep once again and very quickly. संदीप की शादी मेरे ख्याल से बाद में ही हुई है ना, केस वे सब के बाद ही हुई है. संदीप एक बहुत निम्न से परिवार से आता है ना नितेश, छोटे से परिवार से आते हैं. उनके परिवार ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे से गांव से आते हैं लोग. वो कितने महीने जेल में था? वो 3.5 महीने जेल. 3.5 महीने जेल में था और तिहाड़ में था. तिहाड़ में. कभी आपसे पर्सनली बात हुई है कि उसका वो एक्सपीरियंस कैसे रिकाउंट करता है और उसकी फैमिली ने क्या सफर किया है? मैम, एक लड़का जो जहाँ पे आज लैंड होल्डिंग्स कम हो गई है, जहाँ पे आपके पास 1 एकड़ से कम है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यहाँ खेती बाड़ी हम कर लेंगे, तुम दिल्ली चले जाओ, कुछ कमा लो, कुछ कर लो अपने लिए कि कुछ हो जाए आगे, कि हाँ तुम्हारी बहन है उसकी शादी के लिए भी कुछ पैसा जोड़ लोगे. वो ऐसे केस में फंस जाता है जहाँ फैमिली के पास इतना भी नहीं है कि वो एक्सटॉर्शनिस्ट को दे के अपने बेटे को छुड़ा सके. और कि एक तो सोसाइटली जो इमेज है वो इतनी धूमिल हो जाती है, और वही थॉट प्रोसेस वहां पे उस इंसान के साथ चल रहा है. वहां उसके साथ जो जेल में है उनको पता है, क्योंकि उसी के तरीके से कई लोग फॉल्सली एक्यूज्ड हैं वहां. बट वो उस चीज में से सबसे ज्यादा पेनफुल, जो रीहैशिंग दैट, सबसे ज्यादा पेनफुल होता है कि जी मेरे पे गलत लगा, कैसा लगा आरोप. आरोप तो आरोप है ना. अंदर बैठे वो इंसान ये सोचता है कि अभी तो इन वी से द हार्वेस्टिंग इन हरियाणा इट्स कॉल्ड लामणी, कि लामणी का टाइम हो गया, कैसे हो रही होगी. अच्छा जी, कल उसका मुलाकाती आया था, वो बता रहा था जी ओले पड़े हैं, हमारी तो फसल पूरी की पूरी बिछ गई होगी. ही सिटिंग देयर इनसाइड इज थिंकिंग कि अगर ऐसा हुआ होगा तो इस बार तो बिकेगी नहीं, तो मेरे कमर्शियल फंड में कम पैसा डाल पाएंगे घर वाले, कौन आएगा पैसा डालने. तो थिंक द पेन एंड अगनी. जो लोग वहां से, अगर उन्हें अपने बेटे से मिलना है, सुबह 6 बजे आना होगा, और वो वहां से आएंगे, फिर वो 500-700 रुपए जमा कराएंगे उसके में कि वो अंदर उसको साबुन तेल पानी मिल जाए. एंड द जजमेंट दैट आर दीज डेज कमिंग, दिस जजमेंट और द अदर यू वर टेलिंग अबाउट, और द प्रीवियस वीडियो से, उनमें बहुत सारी चीजों की बात हुई, एक चीज की बात नहीं हुई. अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ विक्टिम अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड वन पार्ट ऑफ दैट इज कंपनसेशन. व्हाट नाउ ही इज अ विक्टिम. बहुत सारे जजमेंट जो हम आज देख रहे हैं उसमें डिग्निटी, दैट यू वर सफर्ड दिस प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटी, गलत एलिगेशन लगा, सब चीजों की बात हो रही है.
बट कहीं भी कंपनसेशन आपको एज अ वर्ड या इन ट्रूथ लेटर और स्पिरिट कहीं नहीं मिलेगा. हाउ डू यू कंपनसेट दैट पर्सन जो वो जेल में रहा, उसका पर्सनल जो जीवन का जो 3-3.5 महीने और वट एवर टाइम जो उसने अंदर बिताया, हाउ विल यू कंपनसेट इट? हाउ विल यू कंपनसेट जो उसके घर वालों ने सफर किया, जो एज अ सोसाइटी उसने देखा, प्लस सबसे बड़ा हाउ डू यू कंपनसेट दैट स्टिग्मा? ही हैज बीन ऑनरेबली एक्विटेड, उसको कोई कंपनसेशन नहीं है, पर जैसे ही रेप केस रिपोर्ट किया वहीं से उस लेडी के रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे मिलने चालू हो जाएंगे. Now he is the victim and he has been already acquitted. Let a question be posed कि उसकी compensation उसको कौन compensation देगा, and if the state gives it, क्यों ना ये जो false case जिसने लगाया है उससे recover करा जाए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या उसे आज ये हक नहीं है that he had to pay his lawyers? false case लगाने वाले के लिए तो state was there. नहीं, मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल पेनल्टी डेफिनेटली होनी चाहिए और इन महिलाओं के ऊपर डेफिनेटली होनी चाहिए. हमारे अब ऐसे लोग पनप गए हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो जेल भी काटाते हैं, और महिलाओं को तो वैसे ही कोई ज़्यादा जेल नहीं होती. हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 दिन कोर्ट में खड़े होने की सज़ा मिली या 6 दिन जेल मिली, तो वो तो काट के भी आ जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर फाइनेंशियल पेनल्टी अगर होना शुरू हो जाए, स्पेशली इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, आई थिंक इट कैन go a long way. Any final messages as an advocate that you would want to give to our lawmakers, especially regarding false rape cases, Nitesh? In regards to false rape cases, I just have one thing, that in the new act, that is भारतीय नागरिक संहिता and everything, आपने कैटेगराइजेशन किया कि 3 से 7 साल वाली सजा वाले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है. That the police has 14 days before registration of FIR कि वो देख सकते हैं. वो इन केसेस के लिए क्यों नहीं किया वो प्रावधान? इनमें क्यों आज तक वही मैंडेट चली जा रही है, एज सून एज रिपोर्टेड इट हैज टू बी लॉज्ड? क्यों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ना हो इन केसेस में? व्हाई आर वी, जो पहले जो जजमेंट्स आए थे वो इसलिए थे कि क्या पता उसकी आवाज दबा दी जाए, वो मुकदमा का भी रिपोर्ट ही ना हो. बट वी हैव एन नंबर ऑफ चैनल्स, social media is there, it is not like if something has happened that can be hidden in these days. But let a preliminary inquiry be done first. That has to be inculcated. Second point is about compensation, and third point is about making examples out of these extortionists. That has to be made. All right. Thank you so much, Nitesh, for joining us, and may you keep getting justice to people who approach you. And thanks to all of you for watching this episode. If you have not subscribed to the channel, please do subscribe, and please do share this episode so that people who are in this situation get to know what has to be done, and do not panic, and especially do not give up on their life. Thank you so much once again. Keep watching The Ekam Nyay Show.